Good morning, students. Today we will study about what is genomics. Genomics क्या है? Genomics के बारे में अध्ययन करेंगे. तो what is genomics? Genomics is an area within genetics that concern the sequencing and analysis of an organism's genome. जीनोमिक्स है वो जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है जिसके अंतर्गत जिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है और उसका एनालिसिस किया जाता है that involves the study of all genes at the DNA, mRNA and proteome level as well as cellular and tissue level. The term genomics was first coined by Thomas Roderick in 1986 that which was a geneticist at the Jackson Laboratory in Maine during a meeting about the mapping of human genome. जीनोमिक्स वर्ड है वो थॉमस रॉड्रिक ने कोइन किया था 1986 में जब वो जैक्सन लेबोरेटरी थी उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी मीटिंग में बोल रहे थे या ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे तब उन्होंने जीनोमिक्स वर्ड हैं वो कॉइन किया था. Genomics is the study of all genes present in an organism. By definition, it can be also defined as a discipline in genetics that applies recombinant DNA sequencing methods, and bioinformatics to sequence, assemble, and analyze the structure and function of genomes is called genomics. It includes study of intragenomic phenomena such as heterosis, epistasis, pleiotrophy, and other interactions between loci and alleles within the genomes. So, what is the history of genomics? The genomics is a concept that was first developed by Fred Sanger in early 1970, who first sequenced the complete genome of a virus and of a mitochondria. जीनोमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले फ्रेड सैंगरिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया जिन्होंने कि सर्वप्रथम है वो एक वायरस के और माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंस की थी. उसके बाद में 1972 में वाल्थर फायर ने और उसके साथ रिसर्च ग्रुप के साथियों ने बैक्टीरियोफेज जो कि MS2 था उसके जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंस की और उसके बाद में 1995 में हैमिल्टन और स्मिथ और उसके साथियों ने हैं वो एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो कि एक बैक्टीरिया है उसके जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंस की. तो जीनोम और जीनोमिक्स में क्या डिफरेंस है? Genome is the total number of haploid chromosomes present in an organism is called genome, while the study of function of all genes which are present in an organism is called genomics. And what is the difference between genetics and genomics? Genetics Genetics is the study of heredity, while genomics is the study of entirety of an organism's gene. जेनेटिक्स के अंतर्गत हैं अपन हेरिडिट्री कैसे करेक्टर वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जबकि जीनोमिक्स में हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स में जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है. Gene in genetics, gene refers to a specific sequence of a DNA on a single chromosome. जेनेटिक्स के अंतर्गत अपन जीन को पढ़ते हैं तो जीन क्या होती है? जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन ए डीएनए which are present on a single chromosome, while genome refers to an organism's entire genetic makeup.
In genetics involves the study of function and composition of single gene, while in genomics addresses all the genes and their interrelationships with other genes we studied. So this is the basic difference between genetics and genomics. सब फील्ड ऑफ जीनोमिक्स, जीनोमिक्स की हैं वो कौन कौन से एरिया हैं जिसके अंतर्गत जीनोमिक्स अपन स्टडी करते हैं। तो देर आर थ्री मेन fields of genomics. First one is the structural genomics, and second one is the functional genomics, and third is the comparative genomics. These three are the basic or main fields of genomics, while other fields of genomics also, like metagenomics, epigenomics, and pharmacogenomics, which are also part of the genomics, but these are the three main fields of genomics. What is the goal of genomics? So the main goal of genomics is to sequence the entire genome by cutting it into small and manageable pieces, then assemble the entire genome from the pieces and understand how the gene expression take place. So these are the goal of genomics. देन why to sequence genomes? जीनोम सीक्वेंस क्यों करते हैं या क्यों आवश्यकता है? Sequencing genomes helps understand how the genome as a whole and how the gene works together to direct the growth, development, and maintenance of an organism. जीनोम सीक्वेंसिंग है वो अपने को यह समझने में सहायता करती है कि कैसे एक जीनोम है और उसका जो जीन्स हैं कैसे साथ साथ वर्क करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में रोल प्ले करते हैं। वो सब अपन जब अपने को जीनोम की सीक्वेंस और उसकी होल स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, तब ही अपन पता लगा पाएंगे कि किस जीन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। सेकंड, द जीनोम सीक्वेंस विल रिप्रेजेंट ए वैल्यूएबल शॉर्टकट, thus helping to find genes much more easily and quickly. So these are the two main works. Technical foundations. The technical foundations of genomics involve construction of genomic and cDNA libraries. मैंने जब आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो लाइब्रेरी हैं वो दो प्रकार की होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म के टोटल जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करके उसको वेक्टर में उसको अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट करके उन छोटे छोटे टुकड़ों को वेक्टर में क्लोन करके अपन उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनको डाटाबेस तैयार करके स्टोर कर लेते हैं, तो वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है। जबकि cDNA लाइब्रेरी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहले टोटल जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया जाता है। डीएनए आइसोलेट करने के बाद में उसका एक्सप्रेशन होने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। तो जो आरएनए होता है, आरएनए की प्रोसेसिंग में आपके आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए तीनों बनते हैं। एमआरएनए से वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा cDNA बनाते हैं, और उस cDNA में को जब अपन वेक्टर में क्लोन करके उसको मल्टीप्लाई करके डाटाबेस तैयार करके उसको स्टोर कर लेते हैं, तो वो cDNA लाइब्रेरी कहलाती है। cDNA लाइब्रेरी है वो जीनोमिक लाइब्रेरी की तुलना में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, क्योंकि जीनोमिक लाइब्रेरी में अपने को ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है स्टोर करने के लिए, जबकि डीएनए लाइब्रेरी में स्मॉल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि cDNA लाइब्रेरी में केवल एक्सॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स वाला पार्ट है वो एमआरएनए की प्रोसेसिंग के दौरान हटा दिया जाता है।
सेकंड, जीनोमिक लाइब्रेरी में किसी भी जीन का फंक्शन अपने को पर्टिकुलर का पता नहीं होता, इसलिए उसको सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि cDNA लाइब्रेरी में एक्सॉन वाला पार्ट और एक्सप्रेसिव पार्ट होने के कारण अपन उसको क्विक समय में या अल्प समय में जल्दी से भी किसी भी जीन का फंक्शन अपने को अगर ढूंढना हो तो वो जल्दी कर सकते हैं। सेकेंड है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में अपने को किसी अननोन सीक्वेंस है और उसको नॉन सीक्वेंस के साथ में अपने को कि ये किस किस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसके साथ में हाइब्रिडाइज करवा करके कि भाई इसकी ये सीक्वेंस हो सकती है, वो अपन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन द्वारा। सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग के द्वारा भी अपन जीन मैपिंग करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के दो मेथड मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले ही, जो कि एंजाइमेटिक मेथड या और एक केमिकल डिग्रेडेशन मेथड और दूसरा आपका चेन टर्मिनेशन मेथड बताया था, जिससे कि अपन डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। एक पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, जिसके द्वारा अपने को जब अब स्मॉल अमाउंट में डीएनए अवेलेबल होता है तो उसको लार्ज अमाउंट में, क्योंकि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में अपने को स्मॉल अमाउंट डीएनए से काम नहीं चलता, लार्ज अमाउंट की डीएनए की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, और वो भी बहुत ही शॉर्ट समय में, तो वो अपन पीसीआर के द्वारा हैं डीएनए को एम्प्लीफाई कर लेते हैं और एक लार्ज अमाउंट में डीएनए की हैं वो क्वांटिटी अपने को मिल जाती है। Steps in genome sequencing: break genome into smaller fragments, sequence those smaller pieces, and then piece the sequence of the short fragments together. So these are the basic steps of genome sequencing. Genome sequencing approaches. First is the hierarchical shotgun sequencing, that is useful for sequencing genome of higher vertebrate that contain repetitive sequences. जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अपन जानते हैं कि जैसे जैसे हैं वो आपका प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की तरफ जाते हैं, तो आपके जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है या कम होती जाती है। होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग यूजफुल फॉर स्मॉलर जीनोम्स, जैसे कि आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया है, उनके लिए अपन होल जीनोम शॉर्टकन सीक्वेंसिंग काम में लेते हैं, जबकि हेयरार्कियल शॉर्टकन सीक्वेंसिंग है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए काम में लेते हैं जिनके जीनोम सीक्वेंस लार्ज होती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जीनोमिक्स। The Human Genome Project is an international scientific research project with the goal of determining the sequence of chemical base pairs which make up the human DNA and of identifying and mapping all of the genes of the human genome from both a physical and functional standpoint. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपन किसी भी, जो कि आपका ह्यूमन बीइंग का डीएनए है, उसका केमिकल बेस पेयर का मेकअप कैसा है, उनकी उनको आइडेंटिफाई करके और उसमें जितनी भी जीन्स हैं उनकी मैपिंग करके जो उसकी फिजिकल और फंक्शनल एक्टिविटी हैं उनकी क्या है, उनके बारे में पता लगाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो किया गया था। Human Genome Project was formally founded in 1990 by the US Department of Energy and the National Institute of Health and was was declared completed on 14 April 2003. So the Human Genome Project was completed in 14 years. The basic goal of Human Genome Project were to identify all the genes and their functions in a human DNA, to determine the sequence of 3 million base pairs, the makeup of human DNA, to develop tools for data analysis, to obtain physical map of human genome, and to store the information in public database. So these are the basic goals of Human Genome Project. Benefits and applications of genomics. Genomics can be useful in following ways. It can be used in the field of medicine
for early detection of genetic diseases and its diagnosis and treatment. It is also useful in the field of agriculture and to study evolution through mutation in lineage and in the forensic science. So these are the benefits and applications of genomics. Thank you.